Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Welcome to the CXO show hosted by CXO Global Forum. I am Dr. Mohammed Sarfraz Ahmed, CEO of TerraSpark, and I am pleased to moderate today's discussion on a very timely and important subject. Securing connectivity amid trading tensions in Pakistan, resilient networks, trusted supply chains, and business continuity. Today, digital connectivity is no longer just about internet access, network speed, or uptime. It has been become the foundation of how businesses trade, communication, server, serve customers, and manage supply chains, process payments, operate smart infrastructures, and compete in regional and global markets. When connectivity is strong, in my opinion, businesses moves faster. When connectivity is weak, everything slows down. And when connectivity is disrupted, organizations can lose operational control. That's why today's conversation is not only for IT teams, it is equally important for CEOs, CIOs, COOs, CISOs, supply chain leaders, risk managers, policymakers, and business continuity professionals. Uh, we are living in a time when geopolitical fragmentation is deepening. Before this, going to the topic, I would like to introduce my honorable guests. First, we have Mr. Junaid Khan, Chief Commercial Officer at Kratos Smart Cabinets. Hello, Junaid Saab. Assalamu alaikum. And can you introduce yourself? Walaikum salam, Dr. Saab. It's a pleasure to be with you guys. Um, like you said, I'm the Chief Commercial Officer at Kratos, and I have around more than 2 decades of experience uh, in the connectivity space, I would say. So, telecom being my core area of strength, IT networks, telecom, that has been my core expertise. For the last 6 years, I've been leading this organization, whereby we have completely transformed how telecom networks are operating and securing their energy infrastructure. So, if I can, briefly say the two core areas that I'm dealing with is telecom and asset security. And I think what fascinated me about today's topic is that both of these areas are directly connected with what we want to discuss, and I think it's going to be an interesting discussion. Thank you very much, Junaid. And Junaid brings a very relative perspectives on smart infrastructures. And welcome, Junaid, also once again. Second, we have Mr. Zishan Sabri, Chief Executive Officer at Quantum, Chief Operations Officer at CXO Global Forum, and founder of Clarity OS. Yes, can you, Zishan Sabri Saab, introduce yourself? Dr. Saab, thank you very much. Junaid, welcome uh, to the session, and it's an honor to exchange stage with you and have some thoughts, ideas explored. So, myself, I represent myself as a clarifier. My name is there, so everybody knows that. The basic idea that my life or my work operates on is that we try to stabilize the businesses before they optimize. And the overall idea, I think, in this session is to exchange the same concepts, how in the challenging times that we are going through across the region, call it on the infrastructure side, call it on the geopolitical side, even on the softwares and things that are not tangible, right? And they apparently hit all of us on our emotional approaches and the way we handle situations. So definitely looking forward, Junaid and Dr. Saab, to exchanging thoughts on this. Let's begin, I believe.
Thank you very much, Zishan Saab. I would like to say something about Zishan brings a strong leadership perspectives on operational excellence. I appreciate you that you have a strong background on operational excellence, and also Junaid Saab has a very relevant to our topic, that is the securing network connectivities and all other things regarding supply chains. And once again, I welcome all both of you in the CXO Global Forum, this show today. Before we begin, I would like to invite our audience that we think that about one question. I have to leave one question for my audience. If your organization lost secure connectivity for even one business day, what would be affected first? Customer, payments, operations, supply chain, compliance, or reputation? This is the question for our audience, and the persons, the audience who sees us can comment us in this live session, and we have to ask this question to our guests at the end of the session, because this is for the CEOs, CSOs, CASOs, and all the executives, all the C-level executives. This is questions for all those. And who are the students of these C-levels and going to be C-level? This is also the question for them. And if we think that this is the point to think about it, it's all about that. Now we are going to our experts. Both of you, one by one, and starting from Zishan, the digital connectivity is no longer just an IT issue. It is now linked to trade, operations, customer trust, and national competitiveness. From your perspective, what is the biggest connectivity related risk Pakistani businesses need to address today? Right. Zishan Saab, starting from you. Yes, definitely. And I think this question is from both of you, one by one. So we, just to understand for the audience and for us, is we all understand digital connectivity is not the only challenge when it comes to the operational or businesses efficiency improvements, what they are facing, right? There is fundamentally a bigger angle that needs to be looked at, because we all know that digital tech is not the problem. Did I frame it right? Yes. Yeah. So that's you are you are very much right that digital connectivity is no longer just an IT issue. Precisely. This is fundamental. And if we are feasible, I have to talk mix and match. Our most of the audience is from Pakistan, from the Urdu language countries, and we have to mix and match. If we are feasible to answer in Urdu or in any other language, it is also very good. And this is the very good. 100%. So basic fundamental goal यही है हमारा कि message across होना है. So whatever tone and language it goes, अगर English भी होती है तो हमारी चाहिए कि वो language हमारा message across हो, क्योंकि हमारे mind में, हमारे perception में जो एक reasoning होती है जिसकी वजह से हम एक use case को share करते हैं, वो practical use case की वजह से होती है. So there is a lot of technical elements to that, but on the other side, जो हमारी consumers हैं, हमारे users हैं, हमारे professions हैं, या जो young generation जो आ रही है, उनके लिए वो environment, उनके लिए भी awareness नहीं है उस चीज़ की. So definitely उस level को हमें नीचे लेके आना है. तो ये अच्छा start है, I would say. I think Junaid, you'll resonate to that, के क्योंकि हम भी कभी-कभी explain करते ना अपने passion को, हम उधर ही निकल जाते हैं कि हम tech को explain करने. That's our sweet spot, right? That's our strong strength.
Yeah. So 100%, yeah. Thank you for the reminder, Dr. Saab. So डिजिटल कनेक्टिविटी चैलेंज नहीं है, ये तो मेरी थीसिस और मेरे से काफ़ी कनेक्टेड है, और मैं इसको बहुत ही डिबेट करूंगा और करता भी हूँ, और क्लैरिटी भी इसके ऊपर ही लेके आता हूँ कि एआई या टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है बिजनेसेस को या ह्यूमंस को डिसरप्ट करने के लिए, वो उनके लिए बेहतर है। सवाल ये है कि क्वेश्चन इज कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं, और वेदर वो एंगल उसको एम्पलीफाई कर रहा है कि नहीं। और हम सबको पता है कि मेजॉरिटी इस वक्त जो सिचुएशन है वो नेगेटिव एंगल आ रहा है, और वो नेगेटिव एंगल फिर क्या एक्सपैंड करेगा हम सब जानते हैं, राइट? पीपल विल नॉट यूज इट, people will not practice it, people will not adapt it, and that just keeps on expanding. So this is my short and sweet proposition towards the first question that Dr. Saab you raised. Junaid, over to you. How would you view this? Look, मैं Zishan थोड़ा सा allow me to differ from what you said. Cool. I mean in terms of when I say digital connectivity, तो मैं तो पाकिस्तान को जब देखता हूँ ना, तो मुझे तो फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं. Look, if we look at the stats, in terms of connectivity, we are lagging behind the region in a big way. आप सिर्फ अगर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स अ कोर सब्जेक्ट ऑफ माइन, आपने बेसिकली अभी तक आप अपने लोगों को 3G एंड 4G इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सके ऑन अ ग्रास रूट लेवल. फाइबराइजेशन की आप बात करें तो वी लैक इवन द लाइक्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, तो खैर हमसे बहुत आगे चला गया. वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड फाइबर कनेक्टिविटी. अच्छा, अब किसी भी बिजनेस को, किसी भी छोटे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए what it needs connectivity, right? When I talk to these freelancers and these people who are working in international market, total 3 अंडर सी केबल्स हैं पाकिस्तान के, अंडर सी सबमरीन जो स्टेशंस हैं फाइबर के 3 हैं. सो बेसिकली आपकी पूरी जो कनेक्टिविटी है वो 3 चोक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो देखें, एआई और ये चीज़ें, ये दीज फैंसी वर्ड्स, ये तो बहुत बाद में आती है ना, मतलब ये तो बहुत ऊपर है. लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट. व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमने इस टेक्नोलॉजी को, इसको खड़ा करना है? इफ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द बेसिक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी टू आवर पीपल, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे बिजनेसेस compete करेंगे, ग्रो करेंगे विद द इंटरनेशनल मार्केट? देखें, आज हमें अचानक पता नहीं चलता, कोई शार्क अटैक होता है एंड हमें पता चलता है कि we don't have connectivity. Can you imagine like running a business and not being able to guarantee your customer? जो डॉक्टर साहब ने पहला सवाल भी पूछा था कि if the internet goes down, तो इसमें मैं तो एक ना 3-3-3 एक टेस्ट सजेस्ट करता हूँ. The first 3 is कि what if your primary connectivity for any business, for your primary connectivity goes down for 3 hours? How would you manage that? फिर have you tested your backups? आपको पता है कि अगर आपकी प्राइमरी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, what is your backup? ठीक है जी, मैं लोगों से कहता हूँ, वो कहते हैं जी अच्छा हमारा PTCL नहीं है तो हमने Neatel ले लिया या हमने XYZ ले लिया, ये ले लिया. भाई आपको पता है कि बैकएंड पे दोनों की कनेक्टिविटी एक ही सोर्स से है. Do you understand this? कि if one goes down, you are basically primarily dead. And then 3 weeks, अगर आपका जो कनेक्टिविटी है वो 3 वीक्स के लिए डाउन हो जाए, what impact it would bring to for your business? So मैं ही समझता हूँ कि देखें, we talk about these fancy words, AI and technology and all that, but at the heart of it, we need to invest in our basic connectivity infrastructure. जब तक we are not able to provide this infrastructure to our nation, our people, we cannot expect them to हम कहते हैं जी पाकिस्तान से यूनिकॉर्न्स क्यों नहीं बनते, पाकिस्तान से क्यों हम $billion कंपनीज क्यों नहीं बनती? भाई पहले इंटरनेट तो दे दो, पहले कनेक्टिविटी तो दे दो लोगों को, गिव देम द बेसिक्स. सो मेरा तो इस पे ये ओपिनियन है कि एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग रिजाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, and if you are not able to guarantee that, then let's not talk about building AI infrastructures and AI companies if we are not able to do that.
ई कॉमर्स को उठा के देख लें आप, ई कॉमर्स मतलब पाकिस्तान में आप निकल जाएं बड़े शहरों से थोड़ा सा बाहर चले जाएं आप, people have hunger of doing these kind of businesses, they want to do that, but do we have the right infrastructure to be able to cope with that? So I mean when we are talking about digital connectivity, मेरे mind में तो ये challenges और bottlenecks आते हैं. Sorry for being a bit I don't want to paint a bleak picture, but unless until we solve some of these basic or fundamentals, I don't think that we can take that leap जो कि हमें आगे लेके जा सकती है. So we have to invest in the foundations. Thank you very much, Junaid. And I would first commend on the being real, being true, bringing the right topic or the concern to this forum, right? So this is how it makes it real, and I think what we are saying right now is the regulators of the economy builders, right? उनको steps लेने हैं ताकि हम digital connectivity के ऊपर businesses जो हैं वो consumers के लिए value proposition या added value या कोई बेहतर programs या initiatives ला सकें, correct? ये तो यही होना चाहिए. अब वो करने now अब again I love a thought. मैं इसको कहता हूँ कि thought से thought बनती है, right? And it's always an approach and a lens. So it's not that your approach is wrong or my approach is wrong, but we can have a different idea and a concept about it, right? Now, when I see digital connectivity as a challenge, which rightly so, आप भी उसको explore कर रहे हैं और उसके ऊपर उससे हम struggle कर रहे हैं. As a matter of fact, just for the audience and for all, it's been 2 weeks almost that I actually moved to Pakistan. I've been born and raised in Kuwait and lived across GCC and the rest of the UK and the US. So most of my time has been outside of Pakistan. Okay? And I'm happy to exchange some of my thoughts that I think will help Pakistan as an economy where we can share ideas और हम उसको expand कर सकते हैं, right? तो challenges तो हम हर country में face करते हैं, right? अब कहीं पे भी हमें हर चीज पूरी तो मिलती नहीं है. अगर मैं बात करूं तो मैं एक यूज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, so that उसके ऊपर हम देखते हैं कैसे इसको expand कर सकते हैं. My last country that मैंने move की थी, मैं था ओमान. मैंने move किया था, and the reason मैं ओमान में stuck रहा या मुझे ओमान ने attract किया, because somewhere around 2021 when I made my first trip, वहां पे अभी PayPal नहीं था. Okay, interesting. Now that was, अब उसके दो views हो सकते हैं for any consumer, for any single consumer, right? अब मैंने उसको कैसे देखा? मैंने उसको देखा कि अच्छा यहाँ पे PayPal नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे opportunity है, यहाँ पे need है. अब उसका दूसरा एंगल ये है कि यार यहाँ पे PayPal भी नहीं है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट नहीं अच्छी, इसका मतलब है कंपनी का मुल्क नहीं ठीक है, मैंने नहीं यहाँ पे एफर्ट लगानी. अब ये दो सिनेरियोज हैं, दोनों यूज केसेस प्रॉपर है. ये अप्रोच है, गलत या सही का पॉइंट नहीं है यहाँ, क्योंकि कंज्यूमर का जो अप्रोच बनती है वो उसके एनवायरनमेंट और उसके रोल और उसके कंडीशंस के ऊपर बनती है ना, उसकी रिस्क एपेटाइट पे बनती है या उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बनती है, करेक्ट? एब्सोल्युटली. अगर अब उसको हम थोड़ा सा इसी यूज केस को हम पाकिस्तान के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी नीड टू बी, लेट्स बी लिटिल बिट सेल्फिश एंड नॉट लिटिल बिट, एक्चुअली लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान राइट नाउ, राइट? एंड वी सी हाउ वी कैन एक्चुअली have that second approach, because your approach is not wrong. That's why I gave you that example, because that is an approach that hurts you as a business owner. ना आपको तो hurt होता है ना जब आपका 3 हफ्ते के और 3 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो गया. Of course, हम कैसे कस्टमर रिटेन करेंगे? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है. अच्छा, अब दूसरी तरफ पे चैलेंज ये भी आता है, कस्टमर भी उस कंडीशन को लेवरेज करते हैं. अब उनको पता है कि isn't it a force measure? हम उसको force measure में as an act of God कह नहीं सकते हैं, लेकिन frankly speaking it is out of my control. Yeah. Right? तो इसमें problem statement किधर आती है?
प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेगुलेटर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिजनेस एथिक्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग है. That analysis वो find करना I think ज़्यादा important है, so that we can actually tap into the right areas of improvement, right? And again, and thank you for bringing and sharing that approach, because I don't want you to get defensive now, because this is not about countering. This is about expanding on the thought, right? And I come from a coaching and a clarity point of view. So as I introduced myself, I'm a clarifier. I try to stabilize before I optimize. And you're a business man. You are someone who has responsibility. You've taken contracts. You've actually committed vision, mission, strategies across your teams, businesses, and you have things to deliver. You need support. You need an angle of, यार मैं क्या करूं, मुझे तो हर जगह से Absolutely. हो गया. Yeah. So again, now I'll bring back the point again, because it's a good second round now. We can explore on it. Okay, from that angle, being someone जिसको वो pain हो रही है, because हमें हो रही है. अब हम इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट करें, ताकि हम, क्योंकि जब हम ब्लेम करते हैं ना, तो ब्लेम में हमारा माइंड जो है वो डिफरेंट ऑपरेट करता है. वी स्टॉप एक्सपैंडिंग एंड अ थॉट. सिंपल. दैट्स अ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. हम चेंज नहीं कर सकते उसको. चेंज क्या कर सकते हैं हम? चॉइस ऑफ थॉट, चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट माइट गिव अस सम एंगल. So instead, data connectivity is a problem I see as a challenge, which I think if we again look into the right problems, which I think you are better than me to bring the problem statement, because you know the right problems. मैं तो दूसरे एंगल से आ रहा हूँ ना, मैं तो क्लैरिफायर हूँ. आप practically technical head हो. You go through it. So how would you expand it on that side? Let's see. इसको वो ज़्यादा मुझे. Please, Dr. Very well said. Very well said, Zishan Saab, and very well said, Junaid Saab. The biggest problem is, I think, not the connectivity. हम ये सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जी देखें कनेक्टिविटी जो है वो कुछ टेक्निकल इशू है. अब ऐसा नहीं है. नो, दिस इज नॉट अ बैंडविड्थ, दिस इज नॉट अ राउटर इंटरनेट सर्विस कि जी ठीक है हमें अप टाइम मिल गया एंड देन बिल्कुल ठीक हो गया जी. दिस इज ए डिजिटल कनेक्टिविटी. टुडे कनेक्टिविटी इज एंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन माय ओपिनियन. इट्स लाइक अ पावर. हम कहते हैं बिजली है तो आपका मशीन चलेगी. अब ये हो गया है कि जी आपके पास कनेक्टिविटी है तो आपकी मिल चलेगी, आपके पास जो भी सिस्टम है वो चलेगा, आपकी लॉजिस्टिक्स चलेगी, आपका फाइनेंस चलेगा. अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो रियल टाइम कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, रियल टाइम डैशबोर्ड्स, लाइव मॉनिटरिंग नहीं हो सकती जब आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है. और कनेक्टिविटी पहले ये होता था कि ठीक है जी ये नेटवर्क इंजीनियर का काम है, वो कनेक्टिविटी को देख लेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब ऐसा नहीं है. each and every subject, each and every department is the digital connectivity, is they digitally connected to the real world of that mill, that office, that department, that service. हम आपके पास लॉजिस्टिक्स, आपका कोई एक कंटेनर बुक हुआ है और आपके पास उसकी रियल टाइम लोकेशंस नहीं आ रही और आपको नहीं पता चल रहा वो कहाँ पे है, तो पहले तो आप 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने इंतजार कर लेते थे. बट नो, आपके पास वो आएगा स्टॉक तो आपके स्टॉक में एंट्री आएगी, आपके स्टॉक में एंट्री आएगी तो अगला आपका प्रोसेस जो है वो चलेगा. इट्स ट्रेड, इट्स सप्लाई चेन, इट्स फिनटेक कंपनीज, all, in my opinion, all is the connectivity. If connectivity fails, the businesses may not be able to transact, may not be able to communicate, may not be able to monitor operations, may not be manage their supplies,
and also last but not the least to serve their customers. So the leadership, अगर हम लीडरशिप से या CEO से किसी से भी एक सवाल पूछें, do we have connectivity, तो वो ये नहीं कहेगा कि जी I have the connectivity. ये अब अगर हम इस सवाल को पूछेंगे आज से 10 साल पहले तो बिल्कुल ठीक है. And the original question is, can we continue operating securely when connectivity is disrupted? कि जब कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या हम अपने ऑपरेशंस को सिक्योरली मैनेज कर पाएंगे? ये बेसिकली माइंडसेट है, ये बेसिकली शिफ्ट है जो अगर हम अपने, जो इदारा ये कर पाता है वो इदारा आजकल तरक्की करेगा. जो इदारा ये नहीं कर पाता, जो कनेक्टिविटी को सिर्फ एक इंटरनेट की फैसिलिटी के तौर पे ले रहा है, तो वो सिंपल सी बात है, वो पीछे रह जाता है, वो फार बियॉन्ड दैट. नाउ Junaid Saab, from the CXO or your company as Kratos Technologies, what do you think about how to manage the connectivity in your organizations, and how you think what connectivity means, what digital connectivity means regarding to you, to your expertise, to your company? Up to you, Junaid sir. Right. देखें डॉक्टर साहब, ऑर्गेनाइजेशन पे तो चलें हम बात कर लेते हैं, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर रनिंग ऑपरेशंस नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट वी हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट, और उसमें वी आर, तो हमें तो सिर्फ लोकल फ्रेमवर्क्स को नहीं देखना बल्कि हमने तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स कंप्लाइंसेस को भी देखना है. हम वी आर कनेक्टेड विद आवर ऑफिसेज इन यूके फॉर एग्जांपल, और हम अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे भी सर्व कर रहे हैं, तो हमें तो GDPR और उन कंप्लाइंसेस को भी देखना है, डेटा की प्राइवेसी और बहुत सारी चीज़ों को देखना है. सो वी हैव अ कंप्लीट फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस जिससे हम अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं. एंड वी थिंक दैट वी प्लेस इट एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इंश्योर्स एक स्मूथ ऑपरेशंस, लाइक यू सेड वेरी राइटली. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे पाकिस्तान में वी हैव डिप्लॉयड आवर दिस स्मार्ट कैबिनेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. ये भी वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ केस है. हमने मोर देन 13,000 टेलीकॉम टावर्स के ऊपर अपने कैबिनेट्स को डिप्लॉय किए. सो वी आर रनिंग ऑपरेशंस फ्रॉम Gwadar till I would say Gilgit Baltistan to the very top, and we have teams in the field running operations on these 13,000 towers where we have deployed these cabinets. क्या challenges आते हैं? So मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि you are not sure कि whether when you will go into an area you would be able to make a phone call or not. आपको कनेक्टिविटी के इस तरह के चैलेंजेस आते हैं ना, मतलब नेटवर्क आउटेजेस होती हैं बहुत ज़्यादा, फिर नेटवर्क शटडाउन्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज. वी अंडरस्टैंड वी आर नॉट अ नॉर्मल स्टेट, वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आपने बलूचिस्तान में ऑपरेशंस रन करने, आपको और तरह के चैलेंजेस हैं. आपको अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने स्टाफ की सेफ्टी और उससे रिलेटेड इतने ज़्यादा कंसर्न्स. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी इज़ एब्सोल्युटली the backbone of our organization, jahan pe we have to ensure that our operations run in a smooth manner. और इसी एस्पेक्ट को देखें, जो ज़िशान भी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे. देखें, आई एम नॉट समवन who is here to complain, right? This is not a forum where we come and complain, और ना ही मेरा ये एजेंडा है कि मैंने कंप्लेन करनी है. In fact, if you look at our organization, और अगर आप हमारे सॉल्यूशंस को देखें तो मैं जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं उनके सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड वी आर एक्चुअली डिप्लॉइंग दो सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान. सो फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी आपने एनर्जी की बात की, पाकिस्तान में देयर इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी ऑन टेलीकॉम साइट्स कि ये लिथियम आयन बैटरीज डिप्लॉय होती हैं, एंड somebody would with a hammer or with a एक वो लेकर आएगा, आके कैबिनेट को तोड़ेगा और लिथियम आयन चोरी करके, बैटरी चोरी करके ले जाएगा.
So we have come up with a solution where we deploy these cabinets and they secure these telecom infrastructure, and we are able to remotely monitor. हम remotely monitor कर सकते हैं कि भाई इस पे कोई intrusion तो नहीं हो रही, कोई detect. लेकिन अब ये monitoring कैसे होगी? इसके लिए जो डेटा आना है वो तो उसी नेटवर्क के ऊपर आना है ना, जिसकी कनेक्टिविटी को अगेन उसके पीछे भी फिर डिजिटल कनेक्टिविटी आ गई. So you see, one thing is linked with another. It's like a complete chain. जिसमें से and as they say, the strength of the chain lies in its weakest link, right? So we have to ensure that this whole chain, this connectivity, that's why I emphasize again on connectivity, because as an organization, हमारा तो काम ही है कि हमने connectivity को ensure करना है for our customers and for ourselves as well. So I still believe कि देखें again, piggybacking on what Zishan earlier said कि उसको उस प्रॉब्लम को उसको आप एज अ प्रॉब्लम भी देख सकते हो और उसके ऊपर रो भी सकते हो बैठ के सारा दिन, और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो और उस अपॉर्चुनिटी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी कर सकते हो. वी हैव टेकन द लेटर अप्रोच. हम सिर्फ प्रॉब्लम को देख नहीं रहे बल्कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन द टेलीकॉम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर. हमने पाकिस्तान में more than $35 million की जो इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ सोलर, इन टर्म्स ऑफ अदर रिलायबल एनर्जी सोर्सेज. हमने पाकिस्तान से पिछले साल टेलीकॉम इंडस्ट्री से आई वुड से क्लोज टू 500,000 जो इसके फ्यूल की यानी फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन 500,000 लीटर से ज़्यादा हमने कंजम्पशन को हमने रिड्यूस किया है. So we are actually taking practical steps in this regard, but we are just like one organization. So my take on this would be, yes, as an organization, connectivity sits at the very heart of what we do. हमने इंश्योर करनी है कनेक्टिविटी अपने एम्प्लॉइज के लिए भी, अपने टीम्स के लिए भी और अपने कस्टमर्स के लिए भी. तो हमारा तो बिजनेस ही कनेक्टिविटी का. Nice, very well said, Junaid Saab. And the next question from Zishan Saab. From a CXO and operational excellence perspective है ये जी basically, why should secure connectivity be treated as a boardroom and business continuity issue rather than only a technology issue? मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, मैं तो मानता हूँ इसको. मेरा तो ये इतने इसी वजह से आपसे सवाल किया है कि जी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी ये सिर्फ एक बिजनेस जो कंटिन्यूटी बोर्ड रूम तक का इशू है, ये तो नहीं है. तो इसी वजह से आपसे सवाल पूछा है कि जी आप ये नहीं समझते कि ये एक बोर्ड रूम का इशू है, ये टेक्नोलॉजी इशू है, इससे ज्यादा है, और हम इसको किस तरह से सीईओ के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं. वो हम चेंज किसी को नहीं कर सकते, बड़ी दफा कोशिश की है लेकिन वो चेंज नहीं होती. So the short answer जो मैं, क्योंकि हम evolve होते हैं, by the way, just to finish this sentence, so we do improve, but we don't change, we evolve, right? उसको हम change नहीं होते. So yeah, so operational excellence जो है वो definitely एक policy बन के रह गई है basically, एक framework है, ये SOP है जो operational excellence हमने ये follow करना है. अब किसने फॉलो करना है वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता. वो ऐसे होता है कि अच्छा उसने लिखा है तो उसी ने फॉलो करना है ना, या उसने लिखा है तो वो करवा ले फॉलो फिर हमसे. अब आई माइट बी मेरे जो एक्सप्लेनेशन या पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से हो सकते हैं नॉन टेकी होंगे, एंड जुनैद हैज दैट टेक बैकग्राउंड, एंड even on the connectivity improvement, I loved your angle to it, and rightly put that the challenges of connectivity has to be, and you are actually fixing that problem, which is the first point that you mentioned in the answering the first question. Okay, provide the connectivity, and then you are actually taking those steps to do that. Yeah. And that's why I commend that, and amazing, mashallah. So that's the lens that I am missing now, because that's the business ethics, business side lens. अब अगर ये सवाल डॉक्टर साहब मेरे से करते तो शायद मेरा जवाब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आता, but that doesn't mean that is not a problem. So
what is important for all of us, again, the bigger message is, हम अब ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की अगर बात करते हैं ना, तो ऑपरेशनल एक्सीलेंसी को जब जुनैद अपने साइड से एंगल से देखेंगे, फ्रॉम द leading the complex operations, which he just rightly elaborated in the last point, when you're doing a nationwide telecom operations, it's not easy. And it's forget about not easy. Easy is not a equal word. It's a nightmare. It's It's like, yeah, honestly, it's like बिल्कुल easy तो नहीं है. Sorry, I didn't mean to cut you, but no, easy is not a word. Please fill me in. Yeah, I mean, you need to have operational excellence to be able to pull it off, especially in a geographically diverse, culturally diverse country like Pakistan, where you have to, take into care so many things. So, bilkul, it's like you need to have operational excellence. Otherwise, you cannot survive in this market. It's very difficult. No, ये अच्छी debate हमारी हो सकती है, and I think let's make it interactive rather than a Q&A, because that probably will send the right message audience के लिए जो बनेंगे ना, because audience, आप जिस point से आ रहे हो ना, that is actually the raw problem what we are seeing ना, कि operational excellence चाहिए, business complex है, especially telecoms is one of the most complex and transformative industry, because it had ICT, IT, telecom, infrastructure, data center, सब tech हो गया ना. Yeah. So complexity तो tech में day by day it just keeps on compounding and adding. Yeah. ठीक है. I think in telecom, अगर हम let's suppose Nokia या इनकी बात करें, big OEMs, right? The vendors, Huawei, Nokia, Ericsson, Alcatel. मुझे थोड़ा सा जो आइडिया है, फॉर एग्जांपल नोकिया के इक्विपमेंट्स के बेस स्टेशंस पे मेरे थोड़ा सा एक्टिविटी हुई भी है बैक इन द डेज. तो वो जो TRXs होते हैं, वो कितने, मैं बात कर रहा हूँ 2008-2009 के टाइम के. वो एक जो BTS के जब आपने रैक में डालना है, वो कितना बड़ा हैवी, वो पता नहीं 5-5, 10-10 किलो का होता था उस टाइम पे. Yeah, yeah, that's वो now again ये ऑपरेशनल की सब चेन है ना, क्योंकि ये भी ऑपरेशंस में आती है ना, लॉजिस्टिक्स भी आती है ना, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशन. और आज वही जो है, मेरा ख्याल है कंपोनेंट या मॉड्यूल जो वो, क्योंकि सर्विस तो वो एक्सपैंड हुई है ना, वो इम्प्रूव हुई है. चलो वो 2G था, 5G आ गया, तो कैपेसिटी बढ़ गई है, साइज छोटा हो गया. सर देखें साबरी साहब, यू आर सेड वेरी वेल सेड. देखें, ऑपरेशनल एक्सीलेंस को जब हम बोर्ड रूम की हद तक बात करते हैं, जो आपने पहले बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने, कि जी हम इनको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन मेरे ख्याल में जब कोई बंदा ऑपरेशनल एक्सीलेंस की या ऑपरेशंस की बात करता है कि जी वो बहुत अच्छे हों, तो वो ये सबसे पहले ये चाहता है कि जी ये जो ऑपरेशंस है ये ट्रांसपेरेंट हो. अगर आपने किसी भी कंपनी की किसी भी चीज की एक्सीलेंस की बात करनी है, तो वो आपकी बात शुरू होती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से. अगर किसी भी कंपनी का सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो उनको बिल्कुल होगा कि भाई ये मेरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, देन उनका ऑपरेशंस जहां पे डिलेज होंगे वो ऑटोमेटिकली सामने आते जाएंगे. किस के एंड पे डिले है, कौन से डिपार्टमेंट पे डिलेज हैं. मैं डॉक्टर साहब इस पॉइंट को एक्सपैंड करना चाहूंगा. सॉरी, मैं इस पे मुझे ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. एक्सीलेंस, अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी, यही है ना कि हमारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस जो है वो एक हमारा अब हम अगर किसी भी let me ask Junaid. So Junaid, don't we have this documented in a business organization? होते हैं ना हमारे पास. Yeah. तो पॉइंट ये है कि सर, ये तो हम इस लेवल पे, तो हम किसी भी CEO, अभी सारे हमारे जो भाई देख रहे होंगे या अल्लाह करे सुन रहे होंगे, वो तो कह रहे होंगे यार ये तो सब है मेरे पास, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसका मतलब है मैं तो ठीक कर रहा हूं. Then why the problem is still there? मैं उधर उस क्वेश्चन पे मैं फंस जाता हूं. सॉरी टू, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया.
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल वेल सेड कि इसी जगह पे अब देखें, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि एक ही एग्जांपल उनको मैं कोट करता हूं कि व्हाई डेविल इज कॉल्ड एज डेविल। उसने गलती की और उसने कोशिश की कि मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लूं उस चीज की, बट नो, ही इज कॉल्ड एज डेविल। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलती का अदराक ही नहीं है कि व्हाट ही हैज डिड, और वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहा। हम साबरी साहब यहीं पे थोड़ा सा, जो हमारे सीईओज या जो लोग सुन रहे हैं, वो वहीं पे कुछ उस गलती के ऊपर डट जाते हैं। वो गलती कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, गलती हर एक से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, जुनेद साहब से भी हो सकती है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज सो मेनी मिस्टेक्स। हम उन मिस्टेक्स को ब्लंडर तब बनाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डिसीव करने की कोशिश जब हम करते हैं, तो वहां पे बेसिकली प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम आज हम जो इसके थ्रू लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जो जुनेद साहब का काम है कि ये लोगों को कम्युनिकेशन देते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं, आप भी लोगों को माशाल्लाह से सारा कुछ जो है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस के ऊपर बताते हैं कि भाई दिस इज द ट्रांसपेरेंसी जो आपको नजर आती है आपकी डिजिटल कनेक्टिविटी से। अगर मेरे पास आज से पहले डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास सीसीटीवी कैमराज नहीं थे और मैं ऑनलाइन में नहीं देख सकता था, तो मेरा जो वर्कर था एक एक पावर लूम के ऊपर खड़ा हुआ कपड़ा बनाने वाला, तो वो कहता था जी मैं तो 10 मिनट बाद आया। ठीक है, अभी आप अपने लोगों को मोबाइल फोन देते हैं और मोबाइल फोन से अगर आपको पता चल जाए कि उनको लोकेशन ट्रैक हो रही है तो वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, जहां पे हम जो है वो उसको थोड़ा सा, ये बियॉन्ड दैट टॉपिक जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बेसिकली हम ये लेते हैं। अगर हम किसी सीईओ से या किसी ओनर से बात करते हैं तो वो कहता है यार मेरा ऑपरेशनल बहुत बेहतरीन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जी मेरा पिछली दफा जो था वो फॉर एग्जांपल 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ था, एंड देन इस दफा मेरा 1500 प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे ऑपरेशन इसका मतलब है बेहतरीन चल रहे हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंसी को कमर्शियलाइज कर दिया, जबकि वो उसको ये नहीं पता कि अगर उसकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस बेहतर चल रही होती तो वो 1500 की बजाय 15,000 कमा सकता था। नो, देन द स्काई इज द लिमिट सर, स्काई इज द लिमिट। तो देन द वो स्काई इज अब द लिमिट, देन यू डोंट, या उसने उसको नंबर्स के साथ जो था वो जोड़ लिया और उसने कहा जी मेरी ऑपरेशन बेहतर इस वजह से चल रही है कि जी मेरे जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए। अब वो अब आज के दौर में जब हम एआई के दौर में हैं तो हमने वो भी दौर देखा जब कनेक्टिविटी हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। खैर मैंने तो वो वक्त देखा, जुनेद साहब ने, एंड आई डोंट नो अबाउट योर एज के जी आपने वो देखा कि नहीं देखा, मैंने तो वो वक्त भी देखा जब सीमेंस की एक्सचेंज जो थी वो इंस्टॉल होती थी। तो जब सीमेंस की एक्सचेंज आई और उससे पहले डिजिट जो था वो आप इंटरनेशनल, बल्कि आप दूसरे सिटी में कॉल नहीं कर पाते थे, तो आपको पीटीसीएल के ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां पे कॉल करनी पड़ती थी, ऑपरेटर को साथ लेना पड़ता था कि जी मैं लाहौर गल करनी है जी, तो वो आपकी लाहौर बात करवाता था। आप वो सीमेंस पैचेस, वो क्रोन पैच वाले की बात कर रहे हैं? क्रोन जो पहली केबल जो, जी ये मैं 1995 1996 की बात, उससे पहले AT&T की एक्सचेंज लगी होती थी जो गुर्र करके गरारी सी चलती थी और वो एक काउंटर गिरता था और उसकी बात हो जाती थी। तो मैंने तो वो चीजें जो फिजिकली हैं वो मैंने वहां पे देखी। फिर राउटर्स आ गए 1996 97 में, सिस्को का इंटेलिजेंट राउटर आया था, हमने उस पर कुछ थोड़ा सा काम किया। बट वंस अगेन अब हम 2026 में बात करते हैं तो उस वक्त की कनेक्टिविटी, उस वक्त की डिजिटल कनेक्टिविटी एंड उस वक्त की एक्सीलेंस की बात हम करें और आज की हम बात करें तो हमारे पास केपीएस बहुत डिफरेंट है और हमारे पास रूम टू इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में ये बेसिक, हम देखें यहाँ पे ब्लेम करना चैलेंजेस को, हमने चैलेंजेस को बताना एंड देन उनका सोल्यूशन बताना लोगों को, बेसिकली हमारा ये काम है। एंड जुनेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम उसको, अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। एवरी प्रॉब्लम हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, नॉट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, दे हैव 2 to 3 डायमेंशंस अपॉर्चुनिटीज। और उन अपॉर्चुनिटीज को जो ढूंढ लेता है वही
जो ऑपरेशंस हैं वो कामयाब रहते हैं, और जो उनको नहीं ढूंढ पाता वो ऑपरेशंस जो होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते, इन माय ओपिनियन, इन माय व्यू पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपने इतने प्यारे पॉइंट्स के साथ इसको समराइज किया ना, स्पेशली जिस तरह आपने इस पॉइंट को स्टार्ट किया है कि वो डेविल की स्टोरी के साथ। सो बिकॉज अब वो जिनको रेजोनेट हो जाए, अल्लाह ना करे कि ज्यादा हो क्योंकि वो चीज वो स्टार्टिंग है ना कि कल्चर में, उसी को एक्सपैंड करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेयर आई थिंक हम फ्रेमवर्क्स बनाते रहते हैं, हम पॉलिसीज भी बनाते रहते हैं। हम अभी मैं इधर बैठ के, मेरे पास ऑपरेशनल एक्सेलेंसी का टेलको से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या किसी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बना सकते हैं। चैलेंज वो भी वही बात हुई ना कि एसओपीस तो पड़े हुए हैं हमारे पास, है ना। अब चैलेंज किधर आ रहा है फिर? चैलेंज, अच्छा एसओपीस पड़े हुए हैं फिर भी नहीं हो रहा। हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हम प्रोबेबली अपनी ईगोज आ जाती हैं हमारे बीच में शायद, कि यार मैंने बना दिया तो है, तो ठीक है ना, अब चलना चाहिए, इसको चलना चाहिए। अच्छा ये चलाना किसने है? अब चलाने के लिए इन 2026 अब 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन 2026 से पहले तो एक वो बेसिक ही ऑप्शन होता था जो कि इंसान चलाता है ना। एट द एंड ऑफ द डे तो फंडामेंटली हम कोई भी एलिमेंट ले आए, वो टेक हो, वो डिजिटल हो, वो एग्जीक्यूशन हो, वो ऑपरेशंस हो, द कोर जो है वो यूजर कंज्यूमर, वो कंज्यूमर की शक्ल में हो, जिसने इस्तेमाल करना है, वो उस फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट करना है, जिसने एग्जीक्यूट करना है वो भी इंसान है, राइट। वो वहां पे हम इसको, एंड आई वुड, ये अब ऑपरेशनल वाली साइड पे, बिजनेस वाली साइड पे, क्योंकि आपका और मेरा काम खत्म हो गया डॉक्टर साहब। आपने बना लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने उसको फ्रेमवर्क बना दिया। नाउ जुनैद इज द एग्जीक्यूटर, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम जुनैद ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट, द रियलिस्टिक अप्रोच कि यार हमने बनाया तो फिर ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस क्यों है? एंड द आंसर, द क्वेश्चन टू दिस अप्रोच वुड बी, जिस तरह आपने कंक्लूड किया डॉक्टर साहब के 2026 में हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लुकिंग एट द पास्ट एंड लुकिंग एट नाउ टू बी बेटर इन कनेक्टिविटी। अब नंबर्स, बीसीजी का सर्वे है लास्ट ईयर का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस आर फेलिंग, 75 to 80% ट्रांसफॉर्मेशंस आर फेलिंग। नाउ दैट इज अ बिजनेस आंसर, नाउ दिस इज अ बिजनेस प्रॉब्लम नाउ। So हमारा route हो गया. I think I love the chain the way it goes. So Junaid, please, would you like to expand on this, on a operational point and business point? जी देखें, मेरे ख्याल में जो आप दोनों both of you were discussing, I think I love that analogy जो डॉक्टर साहब ने भी दी डेविल वाली, और मेरे ख्याल में जो problem which is at the top that I see is that के आपने एवोल्यूशन की बात की, चेंज की बात की। मेरे ख्याल में देखें, एक जो माइंडसेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टू अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंस। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है वो ये कि हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, दे डोंट लर्न proactively, or they don't act proactively, rather they are reactive in their thinking and in their policy making. So once a setback happens or once an incident happens, then they take action rather than being proactive in their approach. दूसरी चीज देखें, they always put profitability and numbers above other things. So जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच ये हो कि जी मेरे लिए तो बॉटम लाइन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लाइन और बॉटम लाइन मैटर करती है, देन दिस इज अ चैलेंज। तो मिसाल के तौर पर जैसे देखें, कितने ऐसे कंपनीज हैं जिनके बोर्ड्स के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो कि who are responsible actually for running the operations, या who are the CISOs for examples, or who are the CIOs or the CTOs, जिन्होंने एक्चुअली इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इसको मैनेज करना है, इसको देखना है। जब आपके डिसीजन मेकिंग एक जो है उसके अंदर जो फर्स्ट जो इनपुट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इज प्रॉफिटेबिलिटी और योर फाइनेंशियल नंबर्स, देन फिर ये चीज़ें
साइड पीछे रह जाती हैं थोड़ी सी मेरे ख्याल में. तो in our organization, that's why we have tried to build a very fine balance between the two. और अगर मैं इसके दूसरी एक्सट्रीम ले लूँ, देखें अगर आप सिर्फ ऑपरेशनल एक्सीलेंस और बाकी चीज़ों पे फोकस करें, आप नंबर्स पे ना फोकस करें, तो वो भी गलत है मेरे ख्याल में. बिकॉज या एट द एंड ऑफ द डे people need to be paid, households need to be run. In our organization we have around 500-600 people. So these 600 people, they are it means we are responsible for 600 families. देखिए रिस्क तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन these people are connected to you. So the bottom line and the top line also matters. So मेरे ख्याल में जहाँ पे चैलेंज है वो है कि organizations need to adopt this mindset के हमने दोनों को एक बैलेंस में लेके चलना है. एंड जो फाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर द वंस हु हैव बीन एबल टू अचीव दिस फाइन बैलेंस between profitability and focusing on what really what matters and what creates impact. और एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस, देखें आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर you put your not just the money but the time and the effort and everything from a top level, एक CXO के level से आप अगर उसमें invest करें तो down the line it's going to pay you back as well in terms of your numbers as well. It's going to give you a far more better return than कि अगर आप इसमें invest नहीं करते. तो इसलिए मेरे ख्याल में ना, देखें मेरे ख्याल में अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जहाँ पे ये अवेयरनेस मौजूद है और वहाँ पे जो उनके जो लीडर्स हैं they invest in it in terms of both, in terms of budgets, in terms of time, in terms of efforts, और वहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म फ्रूट्स भी मिलते हैं. मतलब आप देखें अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम हमेशा एग्जांपल्स देते हैं जापान की, जर्मनी की, अब हम चाइना की भी देते हैं. इफ़ यू गो एंड यू लुक एट देयर इंडस्ट्रीज, इफ़ यू गो एंड लुक एट हाउ दे रन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो कहते हैं ना कि यू वुड फाइंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस ओवर देयर. वो एक जोक भी है ना कि अमेरिका ने जापान से कोई ऑर्डर किया, आई थिंक दे ऑर्डर्ड लाइक 100 पीसेस, उन्होंने कहा कि फेलियर या जो फॉल्टी रेट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1% ना. तो उन्होंने 99 सही भेजे और एक बॉक्स पे लिख दिया कि ये वाला जो है ना फॉल्टी है. तो उन्होंने कहा कि यार आपको पता था अगर फॉल्टी है तो फिर आप इसने क्यों, कहा हमने आपके लिए बनाया है सिर्फ जस्ट टू मीट द KPI, वरना हम 100 के 100 भी सही बना. इट्स लाइक when we talk about operational excellence, this is where we need to aim कि आपकी क्वालिटी और आपकी जो capability, मतलब the quality of your product should be such that you and it would benefit you in the long run as an organization, because it builds trust in your customers, it builds आपका एक नाम बनता है, आपकी एक brand बनती है, and then people rely on you for their critical needs, and that's how you sell your products. So मेरे ख्याल में I think it's a long-term vision which is missing in companies, जिसकी वजह से वो that's where the gap is. वरना SOPs like you said and processes and all that, they already exist. वो exist भी करता है, लेकिन उसकी implementation में आके वहाँ पे फिर lag कर जाते हैं, वहाँ पे profit overtake कर जाता है, and operational. This is such a music to my ears. I would just like 1 minute, because I want to tell the audience that this is the organization that you need to go and apply. Because if the mindset of the leadership is like this, then there is no better place to go and work, guys. So please. So thank you, and good on you, Junaid, on this. Amazing. Coming it out from the, you just said top-down approach, which is pyramid. Pyramid ke top pe, that's my dad. Pyramid ke top pe CEO execution hoti hai. And if the mindset is that clear, then clarity goes all the way down to the funnel. Dr. Saab, over to you, please. Sir, well said, Junaid Saab, very well said. And I second Sabri Saab's approach, that connect with Junaid Saab's company for that exciting and very professional approach. Then Junaid Saab, हमारे पास time थोड़ा सा कम है, that we have short of time. With the question that I have so many questions, but the important question is, what should businesses look for when selecting technology vendor?
Nice. The options are connectivity partner or infrastructure provider in a more uncertain trade environment. जी And the second part of that question is also, should vendor resilience, local support, spare parts availability, cybersecurity postures, and continuity planning become part of the procurement decisions? This is actually the one question, but I have to separate it into the two parts for the audience clearances. This is most relevant to you, मुझे to बहुत मजा your लगा, company's बहुत अच्छा policies. लगा ये question. इसके ऊपर पूरा एक अलग से प्रोग्राम बनता है वैसे, बिकॉज आपने ना वो कहते हैं ना दरिया को आपने उसमें बंद कर दिया, कूजे में बंद कर दिया, सो इट्स अ वेरी आपने बड़ा लंबा एक क्वेश्चन पूछ लिया, बट यू नो टू कट इट शॉर्ट, चूंकि मैं आई हैव सैट ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल, आई हैव बीन अ प्रोक्योर, मैंने प्रोक्योर भी किया है और आई हैव सोल्ड प्रोडक्ट्स एज वेल, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पे हम प्रोग्राम जो है वो साबरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वो इसके ऊपर हमें एक प्रोग्राम के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम दे, एंड हम इसको सिर्फ थोड़ा सा कम कर दें कि प्रोक्योरमेंट के हिसाब से अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी वेंडर सेलेक्ट करना है तो वो हम किस पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं? सही तो लाइक ए सेट के देखें, इसमें ना वैसे तो अगर आप मुझसे 6 महीने पहले ये सवाल पूछते तो शायद मैं कुछ और जवाब देता, लेकिन अभी दुनिया जिस पेस पे चेंज हो रही है ना, उसमें यू नो इट हैज बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक अब आप देखें द कंप्लीट होल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग राइट नाउ, अब आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स का भी ख्याल रखना है जो कि शायद पहले आपकी कंसिडरेशन में नहीं थे, क्योंकि आपने सिर्फ एक दफ़ा एक वेंडर को नहीं सेलेक्ट करना, यू हैव टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, और उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर एट प्ले राइट नाउ, ग्लोबल जो आपकी सप्लाई चेन्स हैं, आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, everything is changing right now. We are living in very uncertain and exciting times, may I add. तो मेरे ख्याल में देखें, अगर आप प्योरली मेरिट के ऊपर बात करें, वो तो ऑब्वियसली आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी स्कोपिंग के लिहाज से आपने देखना है कि which vendor is able to meet your requirements in the most effective way. मैं चूँकि थोड़ा सा बाइस्ड हूँ पाकिस्तान के लिए और लोकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ द लोकल इंडस्ट्री एंड हम तो हमारा झगड़ा ही अपने कस्टमर से ये होता है कि जी आप लोकल सप्लायर्स को और लोकल रेजिलियंस बिल्ड करने में हमें हेल्प करें एंड चूज लोकल। अगर मेरी प्रोडक्ट लेट से इंटरनेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में आज अगर 18 और 20 का भी फर्क है लेट से, तो बाय इन्वेस्टिंग इन मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, you would help me to actually close that gap and come at a level where I can be at the same और हमारे ऐसे customers हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, so they invested in us 7-8 years ago and now our product is at a stage where it is competing with the global vendors. तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, अगर आप long term resilience और build करना चाहते हैं तो आपको देखें you should invest in local मैन्युफैक्चरर्स, लोकल प्लेयर्स, लोकल वेंडर्स, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी गैप है आप उस गैप को ज़रूर फिल करें, आप बाहर से लोगों को ज़रूर लेकर आएँ, बट मेरे ख्याल में हमें ना अपने लोकल प्लेयर्स को देना चाहिए चांस। देखें इस वक्त यू डोंट नो कि टेक्नोलॉजी आप लेकर आते हैं उसमें बैकडोर्स हैं नहीं है, कितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वी हैव सीन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स व्हाट हैज़ हैपेंड विद जो सारे एक फेयरनेस के क्लेम्स करते थे और सारे कुछ, उसमें हमने देखा है कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वेपन नाउ. You don't know the mobile phone that you're carrying, maybe it puts a target on your back. I mean, I don't want to be a, हम तो पहले तो ये कहते थे ना यार conspiracy theory की आप बातें कर रहे हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं यार. Now it has been proven that these things, they do matter. We have seen how wars are being fought, how geopolitics is being done. So मुझे ये लगता है कि देखें as an organization long term sustainability इस चीज़ में है कि आप उन vendors को select करें जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिस सप्लाई चेन को आप देखते हैं कि एक सिक्योर स्टेबल सप्लाई चेन है जो कि जहाँ पर आप अपनी सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, एंड
invest in local companies, invest in local manufacturers, invest in local vendors, because in the long run they will pay you off. They will pay you off in the long run. Thank you very much, Sabri Saab. The last comments from you, and then we are going to close that. And I would really appreciate the angle, Junaid, the way the question was put from Dr. Saab. It was a purely procurement related question. If I'm a commercial procurement guy, by the way, so if it was me, na maine to procurement ki kahani khol deni thi abhi yahan pe ki vendor ko kaise select karte hain. So, and mashallah, what you did is so commendable that आपने एक vendor management या vendor selection जो एक functional question को so nicely you transition towards the actual problem statement, and that is how do we vendors तो हम बाद में select करेंगे, वो selection पे क्यों जा रहे हैं, पहले बना तो लें, और how do we improve them and how do we bring them up, and with this I think we can conclude it on a higher note that the question is towards the policymakers probably who sets these tenders in the first place, jahan pe, and even the clients, right? The criteria of selection is the tech has to be international or must have worked with an international experience. Now, the irony on the other side is that we all know what is the dollar remittance of Pakistan influx. Yeah. And the reality check is we are saying go and check your tech outside, whereas the world is using our tech developers for them. Yeah. So question is, I'd leave it with this question, and then we can actually see, because this is a very deep debate. Absolutely. And that's where, mashallah, you've nailed it. I really appreciate your approach and your and the good, mashallah, you're coming from an CEO angle, which is very, as a business coach, this is my vision, to improve CEOs on that angle. So, mashallah, having you and sharing stage with you is an honor. Thank you very much. Thank you very much, Sabri Saab, and thank you very much, Junaid Saab. And thank you very much, the CXO Global Forum, that they have given us such a nice moment, such a nice event, and such a nice panelists that we have today. The future, I think the future belongs not only to the most connected organizations, but to the most securely and resiliently connected ones. True. Allah Hafiz. See you All soon. right, very much. And we have to arrange this in the second episode. Inshallah. Yeah, part two is pending. Yeah, and definitely. Part two. Inshallah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.